And Sadhvi Prachi of the Vishwa Hindu Parishad has once again come out with a hate rant. She's back to her vitriol, a hate warning, and this time for Hajj pilgrims. It's a direct hate threat from the fringe. Sadhvi Prachi has said that if any devotee on the Amarnath Yatra is hurt, she's warned that Muslim pilgrims, Hajj pilgrims, will be hurt. This is what Sadhvi Prachi has been quoted as saying. And I want to quickly bring in India Today's Brijesh Pandey, who's breaking that story for us. Brijesh, bring us details. Where was she speaking? What did she say? Well, she was speaking at a function in Muzaffarpur, and she said that why is it, that the only Amarnath Yatris are attacked and not people who go on Hajj are attacked. So it was a very clear signal of what she was intending, and this threat has not gone down well with the BJP leadership, because when I spoke to a couple of leaders after this statement of Sadhvi Prachi has come, they said that, the BJP has nothing to do with it. She is not a part of BJP, and we obviously do not, conform to any statement of this kind. And it looks like, that Sadhvi Prachi is in a habit of making these kind of statements which are bordering on almost hate-mongering, and this particular statement has definitely given a new twist to the ongoing Amarnath Yatra. Now, Gaurav, in the past, the Prime Minister himself has asked not just BJP leaders, but all leaders to refrain from such statements. And Sadhvi Prachi, this isn't the first time she's made a statement like this. This, of course, perhaps crosses all limits of decency, where she says if one hurts Amarnath Yatris, Hajj pilgrims will also not be safe. This is a threat. This is a threat. If it comes from terrorists, one can, one realizes terrorists make such threats. But here is a leader of a social group which is considered close to the Bharatiya Janata Party. How is the BJP reacting to this? Well, Gaurav, Sadhvi Prachi joins me on the phone line. Sadhvi Prachi, ये किस तरह का बयान आपका? एक विस्तार से बताइए, आपने कहा क्या? अगर अमरनाथ यात्रियों को, हेलो जी साध्वी प्राची बोलिए। अगर अमरनाथ यात्रियों को जो बार बार धमकी और चेतावनी दी जा रही है, अगर उनका बाल बांका भी हुआ, कोई भी किसी भी तरह से उनके साथ अत्याचार अनाचार हुआ, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा उन लोगों को जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। जो लोग श्रद्धा से जाते हैं, आस्था से जाते हैं, निष्ठा से जाते हैं, समर्पण से जाते हैं बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए, और उनके साथ इस तरह से आतंकी साए में आखिर क्यों? माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं, उसी पर हमले क्यों? नहीं, लेकिन क्या आपने ये कहा साध्वी प्राची कि अगर किसी ने अमरनाथ यात्रियों को तंग किया तो हज यात्री सुरक्षित नहीं होंगे? निश्चित रूप से ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। लेकिन साध्वी प्राची वो आतंकवादी हैं, ये किस तरह का बयान है? ये किस तरह का बेतुका बयान है साध्वी प्राची? आप तो एक साध्वी हैं। उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा अगर हमारे हिंदू भाइयों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा। साध्वी प्राची, आप सीधे तौर पर यह कह रही हैं कि अगर मां वैष्णो देवी के दर्शन करने कोई जाता है या अमरनाथ यात्रा के लिए कोई जाता है, अगर उसको कोई खतरा होगा तो हज यात्रियों को भी उसी तरह के खतरे का सामना करना पड़ेगा? निश्चित रूप से करना पड़ेगा, करना भी चाहिए। पता चले उनको कि हाँ, अभी भूमा के अंदर मैं खड़ी हूँ, एक हिंदू लड़के का मर्डर सरेआम दिन दहाड़े किया गया, और उसके क्या नाम, यहाँ पर भूमा के अंदर जो स्थिति है, अभी तक अगर किसी मुस्लिम का मर्डर हो जाता तो पूरे के पूरे उसमें क्षेत्र में सारी वो बंद कर दी जाती, हिंदुओं के मंदिर, उनके सीने के ऊपर मस्जिद है, और इतनी दुर्दशा उनकी, अभी मैं उसी गाँव में खड़ी हूँ। साध्वी प्राची रहिए मेरे साथ। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संजय झा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय झा, यू हर्ड साध्वी प्राची, शी इज लिसनिंग टू यू। साध्वी प्राची सेज इफ एनीवन हर्ट्स अमरनाथ यात्रीज, हज यात्रीज will face the music. Well, Gaurav, you can hear a lot of vitriol and venom from Sadhvi Prachi ji. It's very unfortunate, highly regrettable, and I think, end of day for such kind of
statements that are definitely provocative, threatening. It will only end up polarizing our great country. And Sadhvi Prachi ji is a typical, आप लोग जो सांप्रदायिक जो एक जहर जो आप लोग समाज में फैलाते हैं, अपने देश को लूटने का काम किया 7 साल तक आपने क्या सांप्रदायिकता भड़का रहे हैं? साध्वी प्राची नहीं भड़का रही है। Well, you know, Gaurav, this is the tragedy of the. वो आप पर सीधा आरोप लगा रही है संजय झा, वो सीधा आरोप लगा रही हैं, आप उनका उत्तर दे सकते हैं। साध्वी जी, आपको मैं यही बताना चाहूंगा कि आपका जो विभाजक जो भाषा है, आपने जिस तरीके से धमकी देने की कोशिश की है, इसमें हिंसा लिखा हुआ है, धमकी नहीं दी। आखिर अमरनाथ यात्रियों को ही क्यों हमारे समाज को धमकी क्यों दी जाती है? माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं, उन्हीं को धमकी क्यों दी जाती है? जगन्नाथपुरी लोग जाते हैं, उन्हीं को धमकी क्यों दी जाती है? सभी जी देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और बहुत शर्मनाक बात है, और कि अभी भी आप लगातार उसी बात को दोहरा रहे हैं कि आप जानती हैं कि वो गलत है। महत्वपूर्ण बात कह करके पीछा न छुड़ाओ, मैं पूछ रही हूँ, उन प्रश्नों का उत्तर दो। आखिर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनको धमकियां क्यों दी जाती है? वो आतंकी साए में क्यों घूमते हैं? बाबा अमरनाथ दर्शन करने के लिए जाते हैं, उन्हीं को धमकी क्यों दी जा रही है? हिंदुस्तान में जगन्नाथपुरी लोग जाते हैं, उन्हीं को धमकी क्यों दी जा रही है? धार्मिक स्थानों पर ही धमकियां क्यों दी जा रही है? हज करने वालों को तो आज तक धमकी नहीं दी गई। तो ये तो अच्छी बात है साध्वी प्राची कि हमारे देश में अगर अल्पसंख्यक हैं तो वो सुरक्षित हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे आपको चोट क्यों? जैनी भी अल्पसंख्यक है, उनके लिए क्यों आप बात नहीं कर रहे हैं? नंबर संजय झा, आप इसका उत्तर देना चाहेंगे? देखिए साध्वी जी, जरा 2 मिनट सुनिए। साध्वी जी, जरा कुछ मिनट सुनिए। का काम किया, आप बतला देंगे, जरा 2 मिनट सुना कीजिए। भारत देखिए, सिखों को मरवा दिया, हमारा देश की बात क्यों नहीं की? हमारा देश एक महान देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। ये इस देश हमारी प्रशंसा दुनिया भर में होती है, क्योंकि लोग कहते हैं कि हम संवेदनशील हैं, हमें टॉलरेंस है, हम सब एक साथ रहते हैं, हम एक हैं।